پاکستان کے لیے تاریخی دن اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے خیر مقدمی کلمات کہتے ہیں پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے، مستحکم افغانستان خطے کے لیے ضروری ہے، افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا، عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے، معاشی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا، علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ انتہائی اہم ہے، علاقائی ترقی کے منصوبوں کو سیاسی زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے، معاشی ترقی کے لیے نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ 2020 میں سیلاب سے پاکستان میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، سیلاب سے پاکستان کی معیشت کو نقصان اٹھانا پڑا، ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ پاکستان متبادل فنڈنگ میکانزم سسٹم کی حمایت کرتا ہے، غربت کے خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں کرنا ہوں گی، پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا معاشی ترقی کے لیے نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایس سی او سربراہی اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا۔ پاکستان کے لیے تاریخی دن، اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے خیر مقدمی کلمات کہتے ہیں پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے، مستحکم افغانستان خطے کے لیے ضروری ہے۔ Afghanistan, by virtue of its contiguity with our region, presents an invaluable and rare opportunity for trade and transit, benefiting all SCO member states. A stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. پاکستان کو ایس سی او کی صدارت سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا ایس سی او اجلاس سے خطاب، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے اس صدارت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی مکمل حمایت فراہم کی۔ ہم ایک ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب دنیا بھر میں حالات پیچیدہ ہیں۔ دنیا پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے میں پیچھے ہے، ترقی اور استحکام کا دار و مدار امن پر ہے، قرض کا بوجھ ایک سنگین مسئلہ ہے، کووڈ نے ترقی پذیر ممالک کو شدید نقصان پہنچایا، دو بڑے عالمی تنازعات جاری ہیں جن کے عالمی اثرات مختلف ہیں۔ پاکستان کو ایس سی او کی صدارت سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا ایس سی او اجلاس سے خطاب۔ بھارت نے اس صدارت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی مکمل حمایت فراہم کی ہے۔ ہم ایک ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب دنیا بھر میں حالات پیچیدہ ہیں۔ ایس سی او اجلاس چین اور روس سمیت 6 ممالک کے وزراء اعظم اور مبصر ممالک کے نمائندگان شریک ہیں۔ جناح کنونشن سینٹر آمد پر وزیر اعظم شہباز مہمانوں کا استقبال کیا۔ کانفرنس میں شریک عالمی رہنماؤں کا گروپ فوٹو۔ وزیر اعظم شرکا کے احساس میں ظہرانہ بھی دیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں گزشتہ رات مہمان کے احساس میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کانفرنس میں عالمی رہنماؤں کا گروپ فوٹو بھی ہوا، اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شرکا کے احساس میں ظہرانہ دیں گے۔ ایس سی او کا اجلاس چین اور روس سمیت 6 ممالک کے وزراء اعظم اور مبصر ممالک کے نمائندگان شریک ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں عالمی رہنماؤں اور مندوبین پاکستان سے اچھے تاثرات لے کر جائیں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا پاکستان نے ایس سی او اجلاس کے لیے بہترین انتظامات کیے، صحافیوں کے لیے میڈیا سہولیات سینٹر قائم کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں عالمی رہنماؤں اور مندوبین پاکستان سے اچھے تاثرات لے کر جائیں گے۔ تمام جو خطے کے ممالک اس شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبران ہیں، ان کے وزراء اعظم ہیڈز آف گورنمنٹ یہاں موجود ہوں اور ہر ملک کی اپنی اپنی نمائندگی موجود ہو، پاکستان کا ایک اچھا یہاں سے تاثر لے کے جائیں گے۔ جتنے بھی ہیڈز آف گورنمنٹ آئے ہیں انہوں نے بڑے اچھے تاثرات کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کے حوالے سے یہ جو سمٹ ہے یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ 27 سال بعد کے بعد یہ پاکستان کو جو اعزاز حاصل ہوا ہے یہ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا، یہ تعاون آگے بڑھے گا۔
पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खैर मकदमी कलमात। कहते हैं पाकिस्तान खिते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। मुस्तहकम अफगानिस्तान खिते के लिए ज़रूरी है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड मनसूबा इंतहाई अहम है। इलाकाई तरक्की के मनसूबों को सियासी जाविये से नहीं देखना चाहिए। मुआशी तरक्की के लिए नई हिकमत अमली की ज़रूरत है। 2020 में सैलाब से पाकिस्तान में लाखों लोग मुतासिर हुए। सैलाब से पाकिस्तान की मैशत को नुकसान उठाना पड़ा। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। पाकिस्तान मुतबादिल फंडिंग मैकेनिज़्म सिस्टम की हिमायत करता है। गुरबत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें करना होंगी। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए ये एक हिस्टोरिक डे है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खिताब किया गया। आपको इस सिलसिले में अपडेट कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से भी खिताब किया गया और जो रुकन ममालिक के हुकूमतों के सरबराह हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस इजलास का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से भी खिताब किया गया। 23वां सरबराही इजलास SCO का इस वक्त पाकिस्तान में जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही कलमात कहे हैं। खैर मकदमी कलमात करते हुए उनकी जानिब से यह कहा गया, मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के लिए ज़रूरी हैं। इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कराची से लाहौर पहुंच चुके हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान आज सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात लाहौर में नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर होगी। मुजवज़ा आइनी तरमीम पर हतमी मुशावरत होगी। आइनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी और JUI में इत्तफाक राय हो चुका है। मुलाकात में आइनी तरामीम के मुसवदे के हवाले से नवाज शरीफ की हिमायत हासिल की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी मदऊ किया गया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कराची से लाहौर पहुंच गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान आज सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात लाहौर में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होगी। मुजवज़ा आइनी तरमीम पर हतमी मुशावरत होगी। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदा नदीम चौधरी से। बताइएगा नदीम। जिनको जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान कराची से 2 रोज़ा दौरे पर अब से कुछ देर पहले लाहौर पहुंचे हैं। वो आज मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जाती उमरा रायून में एक अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 26वीं मुजवज़ा आइनी तरमीम पर हतमी मुशावरत की जाएगी। ये मुलाकात इस हवाले से भी खासी अहम है कि गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से तफसीली मुलाकात की थी और इस मुलाकात में उनके दरमियान कामन इत्तफाक राय हो चुका है 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान आज मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उस मुलाकात के हवाले से एतमाद मिलेंगे और उनके दरमियान जो 26वीं आइनी तरमीम पर जो कामन इत्तफाक राय हुआ है उसके हवाले से नवाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग भी देंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्टी ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उसको भी मदऊ कर रखा है और आज शाम को उनके वहाँ पर इशाया भी दिया जाएगा जिसमें मौलाना फजल रहमान शरीक होंगे और मुमकिन तौर के ऊपर अगर मुमकिन हो सका तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आज लाहौर पहुंचकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फिलहाल इस वक्त तक अगर हम बात करें तो लाहौर आमद और नवाज शरीफ से मुलाकात कन्फर्म नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान आज शाम को नवाज शरीफ से तफसीली मुलाकात करेंगे और वहाँ पर जो उनके एजाज में इशाया भी दिया जा रहा है उसकी तैयारियां जाती उमरा में इस वक्त जारी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उसकी नवाज शरीफ से मुलाकात अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन पार्टी ज़राए का ये कहना है कि 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर जो कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में दोनों ईवानों में पेश की जा सकती है। आज की ये जो मुलाकात है मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की ये बहुत अहम मुलाकात है। इसमें हतमी फैसला हो जाएगा कि 26वीं आइनी तरमीम में कौन कौन सी जो तरामीम है वो शामिल की जा सकती है। जी ठीक है नदीम चौधरी, आप हमें बता रहे हैं सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कराची से लाहौर पहुंच चुके हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान आज सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होगी और मुलाकात में मुजवज़ा आइनी तरमीम पर हतमी मुशावरत की जाएगी।
आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी और JUI में इत्तफाक राय हो चुका है। मुलाकात में आईनी तरमीम के मुसवदे के हवाले से नवाज शरीफ की हिमायत हासिल की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी मदऊ किया गया है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान जो कि कराची से लाहौर पहुंच चुके हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान आज सदर नून लीग नवाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का एजेंडा मुजवज़ा आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत है। आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी और JUI में इत्तफाक राय हो चुका है। मुलाकात में आईनी तरमीम के मुसवदे के हवाले से नवाज शरीफ की हिमायत हासिल की जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उमरा में आज बड़ी सियासी बैठक होगी। नवाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के लिए जाती उमरा में दावत का एहतमाम किया गया है। वज़ीर आज़म भी ऐसी कॉन्फ्रेंस के बाद लाहौर जाएंगे। वज़ीर आज़म 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक बातचीत में शरीक होंगे। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उमरा में आज बड़ी सियासी बैठक होगी। नवाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के लिए जाती उमरा में दावत का एहतमाम किया गया है। वज़ीर आज़म भी SCO कॉन्फ्रेंस के बाद लाहौर जाएंगे। वज़ीर आज़म 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक बातचीत में शरीक होंगे। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उमरा में आज बड़ी सियासी बैठक होगी, जिसमें नवाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के लिए दावत का एहतमाम किया गया है। वज़ीर आज़म भी SCO कॉन्फ्रेंस के बाद लाहौर जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक वज़ीर आज़म बातचीत में शरीक होंगे। जी हाँ, आपको अपडेट करें इस बारे में। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरतों का सिलसिला जारी है और इससे मुतालिक नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उमरा में आज बड़ी सियासी बैठक होगी। वेलकम बैक। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की तैयारी। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को होगा। सेनेट का इजलास भी 17 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तलब करने की समरी वज़ीर आज़म को इरसाल। दूसरी जानिब खसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास का वक्त फिर तब्दील 12:30 बजे के बजाय शाम 4 बजे होगा। PTI का खसूसी कमेटी इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना हिरासगी से मुतालिक पंजाब हुकूमत की हाई पावर कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हाई पावर कमेटी की मुबैना मुतासरा लड़की और वालिदैन से 3 घंटे मुलाकात हुई। हाई पावर कमेटी ने मंगल को 36 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। मुतासरा तालिबा के वालिदैन ने बताया, हमारी बच्ची के साथ ज्यादती की खबर बिल्कुल झूठ है। लाहौर पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा पीका एक्ट समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। पुलिस ने पीका एक्ट समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। निजी कॉलेज के तालिबा से मुंसलिक मन घड़त वीडियो का वाकया डिफेंस ए थाने में मुकदमा दर्ज। वाकये से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक सोशल मीडिया पर तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती की खबर वायरल हुई। वाकये की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तलबा तालिबा से दरियाफ्त किया गया। मुतारिका लड़की और इसके वालिदैन ने इस वाकये की मुकम्मल तरदीद की। बच्चे के वालिदैन ने कहा, बेटी 2 अक्टूबर को घर में गहरी चोट आई और वीडियो महज बदनाम करने के लिए बनाई गई। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इश्तिहाल दिलवाकर एहतजाज करने पर मजबूर किया गया। अफराद ने जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ की। वेलकम बैक। अहम खबर, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास तलब कर लिए। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना से। जी आमिर इलियास राना साहब, कल दोनों इजलास तलब किए गए हैं? जी बिल्कुल। कौमी असम्बली कल शाम 4 बजे और सेनेट कल शाम 3 बजे दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। और चूंकि एक डेवलपमेंट 26वीं आईनी तरमीम भी SCO के साथ हो रही है, कल मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान इत्तफाक राय हुआ कुछ तरामीम पर। और आज जाती उमरा में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास आ रहे हैं खाने पे, और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी SCO कॉन्फ्रेंस से फ्री होते ही सीधे जाती उमरा पहुंचेंगे। और जो हतमी ड्राफ्ट है उसको तय किया जाएगा। चूंकि काबीना का इजलास भी कल बुलाया जा रहा है और पार्लिमानी पार्टी का सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट का मुस्लिम लीग नून का कल 2:30 बजे तलब कर लिया हुआ है। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं और तवक्को यही है कि चूंकि कल स्पेशल कमेटी का इजलास भी बुलाया गया है जो खुर्शीद शाह की सरबराही में बनाई गई है, जो आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय या मुजवजा ड्राफ्ट की कोई हतमी शक्ल देने के लिए होना है। तो ये सब चीजें एक साइड लाइन पर चल रही थी, जिसका कल हतमी ड्रॉप सीन आ सकता है कि वो आईनी तरमीम कल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के हल्कों का दावा है कि हमारे पास गिनती पूरी है 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली और सेनेट में। तो अगर ये मामला तय हो जाते हैं आज मौलाना फजल रहमान के साथ, फिर तो कोई किसी किस्म की कबाहत ही नहीं रहेगी
کہ مان کے کون اسمبلی میں 8 اور 5 سینیٹر کو ملا کے اور کچھ سینیٹر پی ٹی آئی کے اور کچھ لوگ جو عوام ہیں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں نہیں آتے یا 63A کے تحت کچھ لوگ اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ دینا چاہیں اپنی پارٹی کے خلاف، تو گورنمنٹ کے حقوق کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں اور تھرو کرائی جائے۔ صحیح، بہت شکریہ عامل ریاض سنانا صاحب۔ اس نیوز بلیٹن سب تک کے لیے اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔